پیغام کے حوالے سے چند باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے خصوصی طور سے، اور یہاں طلباء اور طالبات کے جو گارجین اور ذمہ دار ہیں ان کے لیے خصوصی طور سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے بطور پیغام، بطور واعظ اور بطور نصیحت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کا حکم دو جب یہ بچے اور بچیاں 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کی پٹائی کرو اور ان کو مارو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں کو دی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین کو دی ہے۔ واللہ العظیم، اگر والدین، ماں اور باپ، ان بچوں کے گارجین اگر اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے، یہ آپ کی اولاد، یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں گے، ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو سب سے پہلا معیار بتایا، تربیت کا جو سب سے پہلا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ۔ آپ کو اپنے بچوں کی جو تربیت کرنی ہے، بچوں کو جو نیک راستے پر، صحیح راستے پر لگانا ہے، اس کا آغاز آپ کو کہاں سے کرنا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بچوں کی تربیت کے لیے ابتدا آپ کو نماز سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ان بچوں کو 5 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچوں کو سب سے پہلے نماز کا پابند بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ یہ بچوں کی تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، میرے بھائیو، جیسے آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں آپ کو نماز کا حکم دینا ہے۔ 7 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ 7 سال سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 7 سال سے پہلے یہ بچے ماں باپ کی نگرانی میں رہیں گے، اپنے گھر کے ماحول میں رہیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، اور ماں باپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کو دین سکھائیں، تعلیم سکھائیں، تربیت سکھائیں، امانت داری سکھائیں، گھر میں اسلامی ماحول اور دینی ماحول فراہم کریں۔ 7 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں پر کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ میرے بھائیو دوستوں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ابھی بچہ 7 سال کا نہیں ہوا، 7 سال سے پہلے ہم بچے پر ایسی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں جو اس کی عمر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بچہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، مطلب جتنا بڑا وہ نہیں ہے، جتنی زیادہ عمر کا نہیں ہے، اس سے بڑا بیگ اپنے ساتھ لے کر کے مدرسہ پڑھنے آتا ہے۔ واللہ العظیم، یہ بچوں پر ظلم ہے، یہ بچوں پر ظلم ہے۔ میرے بھائیو، آپ بچے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر 7 سال سے پہلے اس پر تعلیم کی یا کوئی بڑی ذمہ داری آپ اس کو دے رہے ہیں تو بچوں کی تربیت نہیں، بچوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نماز جو اسلام کی سب سے عظیم عبادت ہے، نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بیان فرمایا کہ بچوں کی تربیتی زندگی کا آغاز نماز کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو اس کو نماز کی تعلیم دی جائے گی۔ 7 سال سے پہلے شرعی طور پر وہ کسی ذمہ داری کا مکلف نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرے بھائیوں یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ تو آپ کو مروا اولادکم بالصلاۃ، اولاد کو نماز کو حکم دینا۔
उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाया, वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाए, 7 साल के होंगे तभी आपको नमाज का हुक्म देना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है मेरे भाइयों। 7 साल क्यों? इसलिए मेरे भाइयों 7 साल जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो सिन्ने शुरूर को पहुंच जाता है, अच्छा बुरा जानने लगता है, सही क्या है गलत क्या है उसका तमीज करने लगता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अब जैसे 7 साल का हो, माँ बाप की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, इन बच्चों को नमाज की तरबियत करें। माँ और बाप वालिदैन, बाप अपने साथ बेटे को पकड़ करके मस्जिद में लाए, और एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को, अपनी कौम की बेटियों को अपने घर में नमाज की तालीम दिलाए, नमाज की तरबियत दें। ये वालिदैन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बयान फरमाई। और जानते मेरे भाइयों, जब बच्चों की तरबियत नमाज पर की जाएगी तो उसका सबसे बड़ा फर्क ये होगा, सबसे बड़ा असर ये होगा, नमाज के जरिए से जब बच्चों की तरबियत की जाएगी तो उनके अंदर और भी बहुत सारी इस्लाहात होंगी। इसीलिए उलमा ने बयान फरमाया, ये नमाज एक इनकलाबी इबादत है, नमाज एक इनकलाबी इबादत है। इससे इंसान के अंदर, और एक बंदा जो अल्लाह ताला के रास्ते पर आना चाहता है उसके अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। क्या मेरे भाइयों, क्या इनकलाब पैदा होगा? आप जब बच्चे को नमाज की तालीम देंगे तो नमाज की तालीम देने से पहले उसको आप तहारत सिखाएंगे, पाकीज़ा रहना, पाक रहना, साफ रहना सिखाएंगे। ये नमाज से पहले का मामला है। जब आप उसको नमाज की तालीम देंगे तो नमाज की तालीम से पहले बच्चियों को आप पर्दा सिखाएंगे, इसलिए कि बच्ची के लिए जरूरी है, एक बेटे के लिए जरूरी है, जब अल्लाह ताला की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो, चाहे वो किसी भी नमाज हो, सुन्नत की नमाज हो, फर्ज की नमाज हो, कोई भी नमाज एक बच्ची जब पढ़ने के लिए आए तो मेरे भाइयों उसको मुकम्मल हिजाब में होना जरूरी है, उसको मुकम्मल पर्दे में होना जरूरी है। नमाज से पहले बच्चों को आप पर्दा सिखाएंगे, अपने कौम की बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ वल्लाही लज़ीम बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे दीनी मदरसे हैं, हमारे जो इदारे हैं, जहाँ से बच्चों को तरबियत किया जाए, तालीम दिया जाए, जहाँ से बच्चों के इस्लाह का सामान फराहम किया जाए, जहाँ बच्चों को अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए, उनको इस्लामी बच्चा, दीनी बच्चा और कौम मिल्लत के मुफीद बच्चा बनाया जाए, जो हमारे मदारिस थे। लेकिन वल्लाही लज़ीम हमारे मदारिस, हमारे वालिदैन खुद इन बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ी बिगाड़ के सबब है, बहुत बड़ा बिगाड़ का सबब है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो आप बच्चों को नमाज की तरबियत दें। हमारे यहाँ बच्चों को 7 साल तक ड्रामाबाज बनाया जाता है, बच्चों को ड्रामा सिखाया जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये मेरे भाइयों, वल्लाही लज़ीम इस बात के कहने की इजाज़त दी जाए, वल्लाही लज़ीम सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज जो हमारे यहाँ बच्चों को ड्रामा सिखाया जाता है और स्टेज पर आकर के ड्रामा पेश कराया जाता है, और हमारे यहाँ लोग बाकायदा इंतहाई ज़ौक़ से, इंतहाई शौक़ से, इंतहाई दिलचस्पी के साथ ड्रामे को सुनते हैं और उस पर इनामात भी देते हैं। और मेरे भाइयों, हमारे अहबाब, हमारे उलमा, हमारे चौला ऐसे ड्रामों को इस्लामी ड्रामा कहते हैं। इस्लामी ड्रामा, आज जितनी भी गैर इस्लामी चीज़ें थी, सब चीज़ों को हमारे उलमाए किराम ने इस्लामाइज़ कर दिया है। एक दौर ऐसा आएगा कि चोरी भी इस्लामी चोरी बन जाएगा, सूद भी इस्लामी सूद बन जाएगा। जैसे ड्रामा इस्लामी ड्रामा बन गया है, वैसे एक दौर आएगा कि सूद इस्लामी सूद बन जाएगा, चोरी इस्लामी चोरी बन जाएगी, और दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों को इस्लाम की तरफ मंसूब करके उसको इस्लामी बुराई बना दी जाएगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। वल्लाही लज़ीम ये बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की दीनी गैरत को खत्म करने के लिए, बच्चों के अंदर से पर्दे का रुझान खत्म करने के लिए ये बच्चों के साथ जुल्म है, जो उनके असातिज़ा करते हैं, जो उनके उलमा करते हैं, उनके गार्जियन करते हैं, उनके वालिदैन करते हैं। और मेरे भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ दीन नाम की कोई चीज़ नहीं, दीन नाम की कोई गैरत नहीं है, और हमारे पास दीनी तालीम, इस्लामी तालीम नहीं कि बच्चों को दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक तरबियत की जाए, इस्लाम के मुताबिक तैयारी दी जाए, इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत की जाए। बहुत बड़ा अलमिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलाद को नमाज का दो, वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब वो बच्चे 7 साल के हो जाए, 7 साल के आपको नमाज की तालीम देना है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान फरमाया, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब 10 साल के हो जाए तो इनको मारो। ये मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल का पूरा तरबिया कोर्स रखा, 7 साल से लेकर के 10 साल तक, 3 साल का जो पूरा दौरानिया है, 8 साल, 9 साल और 10 साल, इन 3 सालों में वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत करनी है। किस चीज़ की तरबियत मेरे भाइयों? नमाज की तरबियत करनी है।
वल्लाहि अज़ीम, अगर कोई माँ, अगर कोई बाप, अगर कोई वालिदैन इन 3 सालों में मुस्तकिल अपने बच्चों पर मेहनत कर दे नमाज के हवाले से, तो कोई भी बच्चा बेनमाजी नहीं बनेगा। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों की इन 3 सालों में पर्दे की तरबियत कर दे तो कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा बेपर्दा नहीं बनेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे यहाँ जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, इन्हीं 3 सालों के अंदर बच्चों को बिगाड़ा जाता है, और बिगाड़ने वाले हमारी माएँ और बहनें हैं। बच्चों को और बच्चियों को बेपर्दा बनाने वाली, बेहया बनाने वाली, बेगैरत बनाने वाली हमारी माएँ और बहनें हैं। क्योंकि हमारे घरों में पर्दा, हमारे घरों में दीनी माहौल है, हमारी माएँ और बहनें खुद पर्दा नहीं करती हैं। यहाँ बाकायदा स्टेज लगा हुआ है और वहाँ तकरीरें कर रहे हैं, बच्चियाँ प्रोग्राम पेश कर रही हैं, जवान जवान लड़कियाँ अपनी हया को पेश करके, और बाकायदा मेरे भाइयों बाकायदा मोबाइल से गाड़ी चालू, वल्लाहि अज़ीम ये बहुत बड़ा दुनिया, बहुत बड़ा दुनिया मेरे भाइयों। हमें अपने नफ्स का मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम यहाँ दीनी प्रोग्राम सुनने के लिए आए, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए आए। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम अपना मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें, और जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हमारे बच्चों की इस्लाह नहीं हो सकती। जब तक हम खुद पर्दा नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को पर्दा की तालीम नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को पर्दा की तालीम नहीं दे सकते। जब तक हम खुद अपने अंदर दीन नहीं लाएंगे हमारे बच्चे दीनदार नहीं बन सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब बच्चे 10 साल के हो जाए तो आप उनकी पिटाई करो, उनकी पिटाई करो। ये बच्चों की तरबियत का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून और उसूल बयान फरमाया है। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में और गैर मुरक्कब अंदाज में आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे मौला तो सबसे पहले कहने वाले को इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, और ऐ अल्लाह ताला हमने जो बातें इसमें कुरान और हदीस के मुताबिक की हैं तो खास तौर से मेरे मौला हमारी माँ और बहनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, और इन बच्चियों और बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो वालिदैन हैं, इनके जो मेरे भाइयों मुखिया और औलिया है, अल्लाह ताला उनके अंदर भी इस्लाह पैदा फरमा, उनके अंदर भी इस्लाह पैदा फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि